Very good morning to everyone and welcome to the Than session today. So we started a new series on the topic how not to take things personally, and today is the second session, and for this session we have Sister Vinita who's joined us. Before we begin, I'd like to introduce Sister to all of you all. So Sister Vinita has been associated with the Brahma Kumaris since the last 32 years. She has completed her graduation in commerce and is also a computer software graduate from Mumbai. She is a faculty member to conduct training programs and has imparted spiritual education on several topics, including stress management, power of positivity, calm in chaos, and many more in many organizations like Indian Oil, ONGC, Air India, and a lot more. She is currently rendering her services as a Raj Yoga teacher at Santa Cruz Center in Mumbai and is a faculty member of the Shipping Aviation Tourism Wing, Service Security Wing of the Raj Yoga Education and Research Foundation of the Brahma Kumaris. She has also participated in many projects and campaigns organized by different wings of the Brahma Kumaris in different parts of India. She has also served as a faculty member to the Transport Wing National Campaign on Life's Journey on the Wheels of Goodwill from Mumbai to Chennai, Linking Hearts Campaign, Self-Empowerment Campaign, and a lot more. She's also traveled the world to create spiritual awareness. Didi, on behalf of everyone, I'd like to welcome you. Om Shanti, and over to you. Shanti sister, thank you very much. So today we have a very beautiful topic on how not to take things personally. We'll just begin with a moment of silence. Wherever we are seated, just being with ourselves, focused for what we are here today. Om Shanti. So the period of time that we all are going through in this universe is a very sensitive period. And along with that, we can see that our nature has also become like that. Human nature has also become like that. Whether it is, you can see an imbalance in our nature. An imbalance of personality, inner personality. Sometimes we see that we are very emotional, too emotional. And so in some people, you can see that they are too logical. And somewhere that balance is missing. Those are very emotional, they wish, that when they interact with people and they feel that, काश ये व्यक्ति मुझे समझ पाता, मेरी फीलिंग्स मेरी इमोशंस फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. And those are very logical. They just feel that, those who are emotional, that this is not the way to deal with things. So when there is an imbalance of personalities, and along with that, today's topic, which is, a kind of related much more to being sensitive in nature. सेंसिटिव रहना अच्छी बात है, लेकिन कभी हम लाइफ में ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं कोई बातों को लेकर, प्रॉब्लम्स तब खड़ी हो जाती. किसी के लिए सेंसिटिव रहना इट्स गुड. सो व्हाट वी से इज दैट जब हम ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे मन पर भी उसका असर होता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट मेंटल इलनेसेस,
जो हमको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, वरी होता है, या ओवर थिंकिंग होता है, बिकॉज ऑफ दिस सम काइंड ऑफ नेचर विच इज देयर विद इन अस, या फिर जो कहीं हमारे हेल्थ पर भी असर होता है. मोर देन 80% diseases today are psychosomatic diseases, or maybe even it affects our relations. लोग हमसे सोचेंगे कि किस प्रकार से, तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है. रिलेशंस पर इफेक्ट आता है, या वर्क प्लेस पर भी इफेक्ट होता है. इट हैम्पर्स आवर ग्रोथ. तो समवेयर you'll see in life, that these things do affect our life, and we need to check ourselves कि किस प्रकार की हमारी पर्सनालिटी बनी है, किस प्रकार से हमारा नेचर है. So I'll just start this presentation. So how not to take things personally. और जब हम कहते हैं कि पर्सनली, जो लोग अब थिंग्स को पर्सनली लेते हैं, इसका मतलब क्या है? दैट somebody is doing some action, किसी का थॉट्स है, बिहेवियर है, एक्शन है, लेकिन उसके थॉट्स, बिहेवियर एंड एक्शन को हम क्या कर रहे हैं? हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि वो मेरे लिए कहा गया, एंड वो भी एक नेगेटिव वे में कहा गया, खुद के लिए कहा गया है, नेगेटिव वे में कहा गया है. एंड ऑल्सो जब हम सोचते हैं कि जैसे हमने एक चश्मा पहन के रखा है, सामने वाला जो कह रहा है, जो सोच रहा है, जो बिहेवियर कर रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं. हम अपनी ही एक थॉट्स, एक्शंस एंड हमारा जो एक मनोस्थिति है, हमारी एक मन की जो फिल्टर है, हमारा मन का एक चश्मा है, उसके आधार पे वी आर सीइंग द वर्ल्ड विच may नॉट बी द रियलिटी, but we have won that. And we are always looking at the world, always looking at people based on what filter we have, what specs we have won, and what assumptions are there. So ये है कि हम सत्य को नहीं जान पा रहे. The basic thing is that we are not understanding the reality, we are not understanding the truth. We are living in a very false world which we have created on our own. So that happens, when we start taking things personally. And इस चीज के ना बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं सम ऑफ देम हियर, जैसे मेंशन किया गया है, लो सेल्फ एस्टीम. अपने लिए ही हम अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं कि ये व्यक्ति ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ. सो वी हैव दैट, अपने मन में हमने अपने लिए बना के रखा है. वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. कैसे हम जी रहे? दूसरों के कंपैरिजन में हम जी रहे. हम अपने इंडिविजुअली, मेरे अंदर कुछ गुण हैं, क्वालिटीज है, उसके आधार पे नहीं जी रहे, लेकिन हम दूसरों के कंपैरिजन में जी रहे. दूसरा है, हम हमेशा अपने साथ है ना कुछ अच्छी बात नहीं करते अपने लिए ना. दूसरों के लिए शायद अच्छी बात करेंगे, लेकिन खुद के लिए अच्छी बात नहीं करेंगे. मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं इतनी होशियार नहीं हूँ, मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, इस प्रकार की बातें हम करते हैं. तीसरा है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस. हो सकता है हमारे बचपन में या हमारे पास्ट में हमारे साथ कुछ ऐसी बातें, घटनाएं घटी हो जो बहुत अच्छी नहीं हो. मे बी हमारी फैमिली में, मे बी इवन हमारे पेरेंट्स के थ्रू, एल्डर्स के थ्रू हमको बहुत टॉन्ट किया गया, या हमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया. तो हम उस प्रकार की मेंटालिटी में जीना शुरू करते हैं लाइफ में कि मैं ऐसा ही हूँ, बिकॉज वर्ल्ड सीज मी लाइक दैट, सो मेरा इमेज मेरे लिए ऐसा बन गया है. फिर कुछ लोग जो होते हैं ना, जो बहुत परफेक्ट होते हैं, उनको हर चीज बहुत परफेक्ट चाहिए, तो उनको थोड़ा सा भी कोई करेक्शन देता है, कुछ ये होता है, तो वो ले नहीं पाते हैं, बिकॉज उनको हर चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट होकर, दे वांट टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग. And the other is emotional sensitivity, that is being very sensitive about small things. छोटी छोटी बात में बुरा मानना एक नेचर हो जाता है. तो इस प्रकार की कई बातें आती है when we say that that what causes people to take things personally. So कारण कुछ भी हो, we have to come to solutions. Like अगर हमको कोई बीमारी है,
So, even if you go to the doctor, and people are coming to the doctor saying that मुझे बुखार है, but doctor is giving them all different medicines according to the causes. तो वैसे ही हमको ये थोड़ा हमको अपने आप को एनालाइज करना है, व्हाट इज कॉजिंग मी। देखिए, सेंसिटिव हर व्यक्ति होता है, बट परसेंटेज डिफर्स। परसेंटेज ऑफ बीइंग सेंसिटिव और टेकिंग थिंग्स पर्सनल डिफर्स। कोई क्या होता है, थोड़ा माइल्ड होता है, कोई बहुत ज्यादा, एंड कोई बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पर फील करता है, एंड द टाइम पीरियड किसी का लंबा होता है। कोई चलो ठीक है, बुरा भी मान लिया, छोड़ देते हैं, बाद में एक दिन थोड़े टाइम में छोड़ देते हैं। एंड कई लोग क्या है, दिनों दिनों तक या मंथ्स टुगेदर, इयर्स टुगेदर वो बातों को फील करके रखते हैं, याद करके रखते हैं। अब उन्होंने जो कहा, अपने लिए वो चीज लेकर अपने जीवन में चलते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे अंदर ये नेचर है कि किस लेवल तक ये है, एंड अगर वो इस लेवल तक है दैट इट इज कॉजिंग टुडे फ्रिक्शन इन आवर रिलेशंस और फ्रिक्शन एट वर्क प्लेस या हमारे पर्सनल लाइफ पर, तो वो अच्छी बात नहीं। जब हमको ये समझ में आता है कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो गया है आज, मेरा ये नेचर, मेरा खुद का ये नेचर, छोटी बात में बुरा माना, कोई बात को बहुत पर्सनली फील करना, ये मेरे लिए ही अगर प्रॉब्लमेटिक है, इट मीन्स दैट आई नीड टू चेंज समथिंग इन माई लाइफ। मुझे कुछ तो अपने लिए करना होगा। एंड ये बहुत डिफिकल्ट बात भी नहीं है, दैट वी, इट्स नॉट समथिंग दैट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो नेक्स्ट यहाँ पर आती है, तो फर्स्ट बात ये है, हम अंडरस्टैंड करें हम अपने लाइफ में दैट वी कैन, वी हैव चॉइसेस इन लाइफ। हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक लाइफ में चॉइस है। हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो, सुख वाली लाइफ हो, रिलेशंस हमारी बहुत अच्छी हो, सबके साथ हम मिलजुल कर चले, सब कुछ हमारा, हम सब लोग जो है ना, हम अपने लिए अच्छा ही सोचते। पर फिर क्या होता है, चलते चलते हम कभी कभी ऑटो प्रोग्रामिंग मोड पर चले जाते हैं। अर्थात जब हम जीवन में चलते हैं, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू लाइफ, somebody tells us something, एंड हम जो है ना बहुत हर्ट फील करते हैं, एंड हर्ट, तो ये ऑटो प्रोग्रामिंग बन गया। जैसे उस व्यक्ति ने कुछ कहा, एंड मुझे क्या होना चाहिए, मुझे तो बुरा फील करना ही चाहिए। एंड ये तो मेरा क्या बन गया है, एक ऑटो प्रोग्रामिंग बन गया है कि उसने कहा, आई हैव टू फील हर्ट, एंड मुझे वो बुराई लेकर बैठना है मेरी लाइफ। पर हम भूल जाते हैं दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव चॉइसेस इन आवर लाइफ। जैसे आप देखते हैं कि जैसे एक एलिफेंट है, एलिफेंट को जब जैसे चेन से बांध के रखते थे रोज, एक एक्सपेरिमेंट में किया गया, एलिफेंट को रोज चेन से बांध के रखते थे। तो वो एलिफेंट जो है वो समझता था कि अभी तो मैं यहाँ से छूट नहीं सकता। तो एक एक दिन रात को क्या किया उन्होंने, वो चेन से बांधा नहीं, लेकिन सिर्फ वो चेन रख दिया, लेकिन वो बंधा हुआ नहीं था चेन पर भी। फिर भी वो एलिफेंट कहीं नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको क्या फील हुआ कि मैं बंधा हुआ। सो दिस इज लाइक एन ऑटो प्रोग्रामिंग। तो हमारी लाइफ में भी ऑटो प्रोग्रामिंग चलती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट कंप्यूटर्स, वी आर नॉट एनिमल्स। हम अपनी प्रोग्रामिंग एनी टाइम ऑफ लाइफ वी कैन चेंज, and we have that choice. We have that choice of self awareness, self development, इसकी choice ना हमारे पास है। तो जब हम इस choice को choose करते हैं, हम exercise करते हैं, तब हम अपने लाइफ में changes ला सकते हैं। नॉट दैट कभी कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे साथ है ना बचपन में ऐसे ही हुआ, मेरे साथ सब लोग ऐसा करते थे, सब लोग मुझे ना बहुत ताना मारते थे, एंड मुझे बहुत नीचा दिखाते थे। तो इस प्रकार से हम रहे हैं, एंड जब हम इस प्रकार से ना बड़े होने के बाद भी जाए ना, तो हम क्या करते हैं, हमारी नेचर का हम ही लॉयर बनते। मेरा नेचर ऐसा क्यों है, बिकॉज so and so thing has happened in the past with me, and that is why today I am like this. Okay, हुआ है past में हमारे साथ, and when I become, but when I am I am always जैसे हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, मेरी इस नेचर को हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं फॉर नॉट चेंजिंग। अभी मेरे पास चॉइस है चेंज करने की, बट मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। वो बातों को, पहली जो हमारे लाइफ में हुई है, वो बातों को हमने होल्ड करके रखा है। और जैसे एक जैसे कोई बच्चा होता है ना बचपन में,
छोटा बच्चा जब गिर जाता है, हम समझो गिर जाते हैं, तो मे बी हमारे कोई एल्डर है, मदर है, कहा कि तुम हम बहुत रो रहे हैं, बट स्मॉल चिल्ड्रन वी आर क्राइंग, तो मदर क्या करती है, वो जमीन को भी एक चाटा मार देती है। देखो मैंने जमीन को मारा, तुमको दुख हुआ ना, मैंने जमीन को भी मारा, तो तुम रोना बंद करो। तो हम रोना बंद कर दें। अब हमने ये प्रोग्रामिंग किया कि अगर मुझे कोई भी हर्ट हुआ तो उसका कारण कोई और ही है। तो जब तक उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, तब तक मेरे लाइफ में तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं। तो उस प्रकार की जो मेंटालिटी है, बचकानी मेंटालिटी, बचपन की जो बिहेवियर है, वो लेकर अभी भी हम जीवन में चल रहे हैं। Today also we are living like that. More than 50% people are living like this, thinking this happened to me, so and so happened to me, such things happened to me, and we are living just like that. But don't we have any responsibility in our life? क्या भगवान ने हमें ये जो लाइफ दी है, उसके प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अब आपको किसी ने कोई बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यू विल टेक बेस्ट केयर ऑफ इट। आपको कहा ये मेरा वेल्थ है, थोड़ा आप संभालिए, मैं बाहर जाके आ रहा हूँ, आप ये धन को संभालिए। तो हम क्या करेंगे, हम तो संभालेंगे ना, अच्छे से संभालेंगे। हम खुद का शायद अच्छा नहीं संभाले, लेकिन उसने जो हमें दिया है उसको हम अच्छे से संभालेंगे। तो यह दिस गिफ्ट ऑफ लाइफ, दिस वेल्थ, दिस लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ वेल्थ, क्या हम उसको अच्छी तरह से संभाल रहे हैं? क्या हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लाइफ के प्रति कि मैं इसको अच्छा बनाऊं, मैं उसको बेहतर बनाऊं? मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, चलो जो हुआ, लेकिन अभी हम चेंज कर सकते। अभी हम जैसे हमें अभी हमें समझ आई, पहले समझ नहीं थी, एटलीस्ट अभी तो समझ आई है, तो अभी तो हम कुछ कर सकते। So rather than blaming people, blaming situations, try to be more on what I can do in my life. जैसे एक एक घर में एक बच्चा जो है ना, कुछ बच्चे थे एंड उनके ग्रैंडफादर थे, तो ग्रैंडफादर सो रहे थे, दादाजी सो रहे थे, तो उन्होंने कुछ ना ऐसे मस्ती सोचा, तो जाकर वो दादाजी के मूंछ पर है ना, उन्होंने बहुत गंदा पुराना सा तेल डाल दिया उसके ऊपर, रगड़ा। तो जब दादाजी उठे तो उसको सब जगह क्या आ रही थी, बदबू आ रही थी, वो तेल की बदबू। तो उसको लगा रूम में कितनी बदबू है, कहाँ से बदबू आ रही, सब जगह ढूंढा, कहीं पर भी बदबू नहीं आ रही। अच्छा बाहर गए तो बाहर भी बदबू आ रही है वहां पर, तो उनको लगा सब जगह ही बदबू ही है, लेकिन वो उनका ये नहीं समझ में आया कि मेरे अंदर, मेरे मुंह में ही ये बदबू है। तो ऐसी जो बदबू है या ये है, वो वर्ल्ड में उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करो, लेकिन वो प्रॉब्लम का है, वो बदबू का हमारे मन में है, हमारे थॉट्स में, हमारे इमोशंस में, हमारे फीलिंग्स के अंदर है। तो अंडरस्टैंड दैट आई हैव अ चॉइस टू चेंज and exercise that choice to change in my life, take responsibility of your life and make that one step, जब हम एक स्टेप रखते हैं, जो सुप्रीम है वो हमें 1000 स्टेप आगे ले जाता है, पर वो एक स्टेप हमको तो लेना पड़ेगा। वन स्टेप वी हैव टू टेक। हम सोचे कि मेरा भाग्य ठीक हो जाए, मेरा वर्ल्ड ठीक हो जाए, फैमिली ठीक हो जाए ना, हम बैठे रहते हैं। व्हाट आई कैन डू अबाउट इट, दैट इज व्हाट आई हैव टू थिंक। Second is being understanding and empathetic. हम सोच ना, थोड़ा हम बातों को सोचे, सोच को हम समझे, एंड सामने वाले व्यक्ति के सोच को भी हम समझे। अक्सर करके लोग जब कुछ बोलते हैं, जनरली वो अपने बारे में ही बोल रहे होते, दे आर नॉट टेलिंग अबाउट यू, दे आर टेलिंग अबाउट देयर ओन सेल्व्स। एक बार एक प्रोग्राम में शिवानी बहन थी एंड कोई शिवानी बहन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने इतना अच्छा पोएटिक वे में बहुत सुंदर तरीके से इतना शायरी सब करके इंट्रोड्यूस किया एंड बहुत महिमा की। तो उसके बाद शिवानी बहन ने उनको कहा कि ऑडियंस को कहा कि इन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन नहीं दी, लेकिन इन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन दी। अर्थात उसके मन के विचार इतने अच्छे हैं, उसके मन के विचार इतने श्रेष्ठ हैं, तो वो इंट्रोडक्शन उन्होंने अपने बारे में। सो जनरली व्हेन पीपल आर टॉकिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। और कभी कभी क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन प्रॉपर सेंस की बात क्या है। बहुत साल पहले ना हमारे सेंटर पर एक व्यक्ति आता था, थोड़े बड़े एज के थे,
बिल्कुल शांत रहता था, ज्यादा बात नहीं करता था। तो कभी मैं उनसे पर्सनली मैं जाके बात करती थी, कैसे क्या है, मैं पूछती थी ऐसे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हमारे ऊपर भी कई सेवा की जवाबदारी आई आती गई। तो जब हमारा जैसे क्लास होता था, वो क्लास जब छूटता था तो सब लोग मिलते थे ना। तो मुझे क्या होता था, मेरे पास जवाबदारियां होने के कारण आई यूज्ड टू गो एंड टॉक टू मीट देम, बिकॉज वो लोग सब निकल जाते थे। नहीं तो फिर इसलिए मुझे उनको उनके साथ खड़े रहना पड़ता था कि ये सेवा है, ये सेवा है सारे दिन में। तो धीरे धीरे मेरा वो पर्सन से थोड़ा कम्युनिकेशन भी कम हुआ, बिकॉज मेरी दूसरी इसमें अटेंशन कई और चीजों में थी। फिर वो धीरे धीरे वैसे भी क्लास में कम आता था, कभी डिफरेंट टाइम पर आता था, सोचा था मैं मेडिटेशन करने आऊं इस प्रकार से। पर वो कैसे आता था, हमेशा जैसे ना चेहरा नीचे, ऐसे ना नीचे देखकर ऐसे जाएगा और नीचे देखकर ही आएगा ऐसे। वो किसी से भी ऐसा सामने देखकर बात नहीं करेगा, या ओम शांति हेलो कुछ भी नहीं करेगा, नीचे देख चुपचाप जाएगा, चुपचाप आएगा। एंड कई कई लोग हम देखते थे सेंटर में, कभी आके कहते थे ना, बहुत अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे, बहुत बहुत सारी बातें बोलते थे। तो मैं हमेशा जब भी इसको मैं और ही सामने से कई बार उनको विश करती थी। फिर मैं सोचती थी ये व्यक्ति देखो कितना साइलेंट है, उसको कोई एक्सपेक्टेशन ये सब चीजें नहीं है, बिल्कुल चुपचाप आता है जाता है। पर एक दिन क्या हुआ कि वो सेंटर पर आए एंड अपनी वाइफ के साथ आए, एंड जो हमारी सीनियर है उनके साथ कुछ मीटिंग कर रहे थे। तो मुझे लगा पता नहीं क्या लाइफ में उनको प्रॉब्लम है, वैसे तो जनरली कोई प्रॉब्लम्स लेकर वो आते नहीं है इस प्रकार से, एंड हमेशा शांत एंड इस प्रकार से रहते हैं, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस मीटिंग के बीच में मुझे बुलाया गया, तो मैं फिर गई, तो फिर मेरे से पूछा गया। फिर जो हमारी सीनियर है उन्होंने कहा कि ये भाई को ना आपसे कुछ पूछना है, उसकी वाइफ भी थी, कुछ कहना है। मैंने कहा ठीक है, क्या कहना है। तो वो मुझे कहा कि आप मुझे बताओ मेरे से क्या गलती हुई है, जो आप मेरे से बात भी नहीं करते हो, मेरे से आप मेरे को बहुत इग्नोर करते हो, मेरे से बात भी नहीं करते हो, इस प्रकार से मैंने ऐसी क्या गलतियां की है। एंड बिल्कुल रोने लगा। तो मुझे थॉट है, मैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया पहले कि क्या हो रहा है, मैंने बोला आपने तो कोई गलती की नहीं है, आपने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने ऐसा तो कुछ बात ही नहीं है। तो नहीं आप मेरे साथ है, मैंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने कहा मैं ही शायद कुछ अपने ही कामों में रही होंगी, तो शायद मैंने आपके साथ कम बात किया होगा, या आपको फील हुआ मैंने इग्नोर किया। एंड ये सब बातें मैंने उसको समझाई, मैंने बताई किया, फिर भी मैंने उसको उनको सॉरी कहा कि हो सकता है मेरे ऐसे कोई भी ऐसा बिहेवियर है आपको बुरा लगा होगा। तो एंड बिल्कुल बहुत ही डिस्टर्ब रोना, मैंने एक बड़े व्यक्ति का इस प्रकार से रोना मुझे खुद बहुत अच्छा नहीं लगा। तो कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले का वो इंटेंशन नहीं होता है कि आपको इग्नोर करना हो या आपसे बात नहीं करना, लेकिन वो अपनी ही बातों में, अपनी ही लाइफ में, कई लोग अपनी ही कई उलझनों में होते हैं, लेकिन हम उस बात को मिस इंटरप्रेट करते हैं, हम वो बात को समझते नहीं, और हमको फील होता है कि हमें इग्नोर किया गया, एंड ये सोचकर हम बहुत दुखी हो जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जैसे कोई मीटिंग है, अगर मीटिंग में हमें बुलाया गया और हमसे कहा गया कि आप अपनी राय दो, और हमने राय दी, लेकिन डिसीजन में हमारी वो राय मानी नहीं गई। तो फिर हमें बहुत फील होता है, हमें बुरा लगता है कि देखा मैं मेरी तो बात सुनी नहीं गई, मानी नहीं गई, फिर तो मेरे से राय पूछनी नहीं चाहिए थी अगर ऐसी बात है तो। तो वो बहुत उस बात को पर्सनली लेना। हमारे सेंटर पर भी कभी जैसे कोई अनाउंसमेंट्स होती है, कभी होती है कि समझो जो थर्ड फ्लोर पर है या फोर्थ फ्लोर पे है, तो लिफ्ट जो है, जो लोग सीढ़ी चढ़कर आ सकते हैं वो सीढ़ी चढ़ के आवे, जिसको जरूरी है वही लिफ्ट यूज करे, सपोज हमने ऐसा अनाउंसमेंट किया। तो इसमें क्या होता था, वो अनाउंसमेंट होता था यंगस्टर्स के लिए। पर क्या होता था, कोई जो बड़े एज के लोग होते थे, तो उनको फील होता था कि शायद हमारे लिए बोल रहे हो, एंड वो सीढ़ी चढ़ के आना शुरू करते। फिर हमको उनको कहना पड़ता था नहीं भाई आपके लिए नहीं है, जो कुछ यंगस्टर्स है जो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, ये उनके लिए है। तो क्या होता है कि मे बी वो आपके लिए नहीं होगा, बट समटाइम्स टेकिंग इट पर्सनली भी हम अपने लिए ले लेते हैं कि हाँ ये शायद ये बातें ना मेरे लिए कही गई है, या इसका इंटेंशन मेरे लिए है।
तो ये बातों को समझना ऐसे क्योंकि कभी कभी बात छोटी होती है लेकिन उस बात को हम बहुत बड़ा बना देते हैं। जैसे 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 हमारी ये ना बहुत फ्रेंड सर्कल होती है ना। कभी मेरी फ्रेंड्स, मुझे याद है कभी कभी मेरी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड मुझे और भी फ्रेंड्स होते हैं, अभी जो बहुत क्लोज फ्रेंड है वो कुछ गलती करते हैं तो मैं उसको समझाती थी कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, तुमने ये किया राइट नहीं है, तुमको ये करेक्शन करना चाहिए। तो थोड़ा सीरियसली भी समझा देती थी। फिर क्या होता था, अच्छा वो समझ लेती थी, हाँ ठीक है वो करेक्शन कर ले। फिर कुछ समय के बाद अभी वही गलती कोई और करता था तो मैं कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं वो बाउंड्री क्रॉस करके उनको मैं समझा नहीं सकती। तो वो मेरी फ्रेंड आके मुझे कहती थी कि जब उसने गलती की तो तुमने तो कुछ कहा नहीं, और मैंने गलती की तो तुमने मेरे लिए कितनी बातें की करी किया, कितना मेरे को स्कोल्ड किया। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम मेरे से इतनी क्लोज है, इसलिए तो मैं तुमको समझा रही हूँ, तो अच्छा तुम्हारा अच्छा हो, नेक्स्ट टाइम वो नहीं करे, नुकसान नहीं हो। तो ये चीजें एंड उनको तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो ये चीजें कई बार क्या होता है समझानी पड़ती थी। पर ये सब बहुत स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल्स है, हमारी डेली लाइफ में होती है। जैसे आपने किसी को अपने घर में बुलाया, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है, आपने उसको बुलाया। अच्छा आपने उसको बुलाया तो आपको फील होता है कि चलो ये तो मेरी क्लोज फ्रेंड है, मुझे उसको बहुत ज्यादा खातिरी करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो घर जैसी पर्सन, तो शी कैन जस्ट डू वट एवर शी वॉन्ट्स इन माई हाउस, वट एवर। तो दूसरी थोड़ी देर के बाद सपोज आपके घर में कोई ऐसा रिलेटिव या ऐसा कोई गेस्ट आता है जो कभी कभी आते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसकी खातिरी करेंगे। अगर ये आपका जो फर्स्ट फ्रेंड है वो बुरा लगाता है कि अच्छा देखो मैं आई तो मेरी तो कोई खातिरी नहीं हुई इतनी, और वो गेस्ट आया तो इतनी खातिरी हुई। तो ये होता है बातों को पर्सनली लेना, बिकॉज आप समझ नहीं रहे हैं आपका रिलेशन क्या है उस व्यक्ति के साथ। उस व्यक्ति ने आपको इतनी फ्रीडम से इतनी क्या कहते हैं, एक अथॉरिटी से अपना समझ कर ये बातें की। तो ये है एम्पैथेटिक रहना। व्हेन यू आर एम्पैथेटिक, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट सी दैट पर्सन इज वेरी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स मी, तब जाकर उसने ऐसी बात मुझे कही, नहीं तो कौन कहता था, है ना। नहीं तो उनको क्या जरूरत है वो चीज कहने की आपको या समझाने की आपको। तो वो आपका वेल विशर है। एंड दूसरों की बातों को समझना, सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज टू पॉज एंड रिस्पॉन्ड। तुरंत समटाइम्स व्हाट हैपन, कोई भी बात हो जाती है विदाउट जस्ट पॉजिंग, तुरंत क्या करते हैं, हम रिएक्ट कर लेते हैं कि हम सोचते समझते ही नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है। जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहता है जिससे मुझे बुरा लगता है, मान लीजिए, तो पहली बात ये सोचिए कि क्या उसने कहा ये सही है या गलत है। अगर वो सही है, उसने जो बात कही, पॉज करके सोचो ये सही है, उसने जो मुझे क्रिटिसाइज किया या मुझे लगा उसने मेरे लिए कहा तो सही है, थिंक अबाउट इट ना, पॉज दो बिफोर इवन रिएक्टिंग समथिंग। यू गिव अ पॉज, आस्क योरसेल्फ, इज इट राइट? So if it is right, then I have to do something, I have to do some correction, some change within me, कुछ भी हमको करना है। अगर हमको बॉस बुलाकर हमें कोई करेक्शन देते हैं, हमारी रिपोर्ट देखते हैं एंड कहते हैं कि ये तुम्हारे रिपोर्ट में दिस थिंग्स आर नॉट highlighted, you have missed out these things, instead of just coming into those kind of thoughts, हाँ बॉस को तो हमेशा मेरी गलतियां दिखाई देती है, मुझे पता था मैं तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकता हूँ, एंड जो किया उसके लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं है, जो नहीं किया है वही हमेशा हाईलाइट होती है। तो इंस्टेड ऑफ कमिंग टू ऑल दिस थॉट्स, फर्स्ट इज दैट यू थिंक दैट इज इट राइट, वट एवर ही और शी इज टेलिंग टुवर्ड्स मी, ये राइट है या रॉन्ग है। राइट है तो व्हाट आई कैन डू इम्प्रूवमेंट अबाउट दिस। रॉन्ग है तो फिर आपको उसकी ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है वो जानबूझ के किया जा रहा है तो आपको वो चीजों को इग्नोर करना, कई चीजें इग्नोर करना, या कोई चीजों को जैसे हम कहते हैं ना कि छोड़ देना या इग्नोर करने करना। एंड अगर आपको लगता है सामने वाले ने अनजाने में किया, जनरली वो व्यक्ति ऐसा करता नहीं है, लेकिन क्या है जानबूझ के नहीं किया है,
लेकिन अनजाने में किया, या तो उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या तो वो बहुत डिस्टर्ब्ड है कोई बातों को लेकर, एंड वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकला है आपके ऊपर। तो कभी ऐसा भी होता है, इट इज नॉट फॉर यू, बट इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर यू, बट ही इज जस्ट रिमूव दैट फ्रस्ट्रेशन आपको सामने देखते हुए। तो ये सब आप पॉज करके थोड़ा सोचिए बिफोर एक्चुअली रिएक्टिंग अबाउट इट। एंड दूसरा है, अगर हमें बहुत जल्दी वी टेक थिंग्स पर्सनली, मीन्स हमारे अंदर है ना कहीं एक प्रकार का ईगो है, एक दैट ईगो इज मेकिंग अस रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली। नाउ कोई व्यक्ति सोचेगा कि जो व्यक्ति को सेंसिटिव नेचर है उसको ईगो कैसे है, क्योंकि एक कहावत भी है, जिस जो अभिमान में रहता है उसका उसको अपमान की फीलिंग जल्दी आती है। अब ये ईगो ना हमारा बाहर से नहीं दिखता है, बहुत सटल ईगो होता है। एक ना व्यक्ति हमारे सेंटर पर आता था, तो वो ड्राइविंग का काम करता था। तो उसको जो है ना कुछ जैसे लॉकडाउन का टाइम था या कुछ था उस समय, तो ही वांटेड, ही वाज ट्राइंग टू गेट जॉब्स ऑनलाइन एंड ऑल, जो ऑनलाइन। तो वो मेरे पास आया एंड उसने तो अप्लाई करके इसको दे दिया। फिर मैं चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना मेरे खाना वाना खाने के लिए गई। थोड़ी देर के बाद जो है, मैंने फिर जब आई मैंने पूछा कि उनका कुछ जवाब आया। तो उसने बोला हाँ जवाब आया। तो मैंने भी जवाब दे दिया, ऐसा बोला, मैंने भी जवाब दे दिया। तो मैंने बोला क्या जवाब आया, क्या कहा उन्होंने? तो आप सुन के हैरान होंगे उसकी बातें। उसने मुझे कहा कि ये जैसे बॉम्बे लैंग्वेज में होता है। उसने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तेरी वाट लगा दूंगा, दीज आर द वर्ड्स, मैं तेरी वाट लगा दूंगा। तो मैंने उसको जवाब दिया, तुम क्या मेरी वाट लगाओगे, मैं तुम्हारी वाट लगा। तो मैं तो हैरान हो गई सुन के ही। मैंने पूछा ऐसा कैसा कोई रिस्पॉन्ड करता है कोई बातों को? तो मैंने पूछा बताओ क्या है। मैंने उसका मोबाइल लिया और देखा। अब उसका इसमें क्वेश्चन ये था कि इन इंग्लिश, व्हाट लैंग्वेज यू नो। अभी ड्राइविंग के लिए लैंग्वेज जानना चाहिए, तो अभी उसने उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने क्या पढ़ा, वाट लगाऊंगा, इंस्टेड ऑफ व्हाट लैंग्वेज उसने पढ़ा है वाट लगाऊंगा। एंड ही इज गिविंग दैट आंसर कि तुम क्या लगाओ, मैं ही तुम्हारी वाट। तो मैं सोच रही थी कि इतना सेंसलेस पर्सन, अगर कोई व्यक्ति जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो क्या जॉब देने वाला ऐसा रिस्पॉन्स देगा? एंड अगर सच में किसी ने कुछ उल्टा कहा है, आपको जॉब की जरूरत है, तो क्या आप ऐसा रिस्पॉन्ड दोगे? तो जरा सोचो तो सही। मैंने बोला आप सोचो तो सही। मैंने कहा कि ये इसमें लिखा क्या है, और आपने लिखा क्या है उसके रिप्लाई में, आप बोल क्या रहे हो उसको? तो एंड देन मैंने कहा कि मैंने दिस इज लाइक बिकॉज ईगो, कि ईगो एंड विदाउट थिंकिंग कि मैं क्या करूं। मैं ना जस्ट वो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स, वो कैसे मुझे ऐसा बोल सकता है? मैं हाउ कैन समबडी टेल मी लाइक दिस, इसने मुझे ऐसे कैसे कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो इस प्रकार की जब हमारी एक ईगो होती है, या फिर दूसरा एक टाइप ऑफ ईगो होता है जब हम सोचते हैं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर की हूँ, सब मैं बहुत समझदार हूँ, मैं सबको अंडरस्टैंड करके चलती हूँ। एंड किसी ने मुझे कह दिया तुम्हारे में तो जरा भी सेंस नहीं, तुम्हारे पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, ऐसा कह दिया। तो भी हमको वो इमेज जो हमने अपनी बना के रखी है ना, वो इमेज जब हर्ट हो जाती है, एंड वो ईगो को हमने पकड़ के रखा है, तब देन वी रिस्पॉन्ड लाइक दिस, इस प्रकार से we respond. So we have to reflect, at times we have to reflect on what we are saying, what we are doing in life, कि किस प्रकार से हमें रहना चाहिए। And then वो change before just reacting, and then afterwards then repenting, react करने के बाद कभी हमको repent होता है कि अच्छा ऐसे ऐसी बात। एंड नेक्स्ट इज लेटिंग गो। तो जब हम चीजों को लाइफ में थोड़ा इजी हो जाते हैं, लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेते, हर चीज को कईयों को बहुत इंपॉर्टेंट बनाने की आदत होती है, बहुत सीरियस रहने की आदत होती है, छोटी छोटी बात को भी बहुत पकड़ के रखते हैं, एंड उसको ईगो इश्यू बनाते हैं। एंड यू आर मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर योर ओन सेल्फ, नॉट फॉर एनीवन एल्स। we make things so difficult, and we don't let go things hold करते।
तो एक जिसमें एक जोक आता है कि एक व्यक्ति ने ना उसकी वाइफ ने उसके एक हस्बैंड को पूछा कि आप क्या सुन रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूँ। तो वाइफ कहती है कि मोदी जी के मन की बात सुनने को टाइम है, मेरी मन की बात सुनने के लिए आपके पास जरा भी टाइम नहीं है। तो वो कहता है कि मोदी जी तो मन की बात सुनाते हैं, लेकिन तुम तो मन की भड़ास निकालती हो, तुम्हें क्यों सुनूं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि वो सब चीजें पाइलअप होती रहती है, अंदर ही अंदर हम बढ़ते रहते हैं। एंड आप सोचिए कि जो गॉड ने हमें लाइफ दी है कि आप बहुत इजीली रहो, आप खुशी में रहो, शांति में रहो, बट वी मेक इट सो डिफिकल्ट फॉर अस। तो हम जितना सिंपल रहते हैं लाइफ में, जितना इजी चीजों को छोड़ते हैं। एंड आज के समय में अगर आपको सुखी रहना है, खुश रहना है, यू हैव टू लर्न टू लेट गो थिंग्स, एवरी डे इज न्यू डे। जो बीत गया अगेन वो बातों को हम कहते हैं कि कुछ बातें कितनी होल्ड करके रखते हैं, एंड वो होल्डिंग हमें ही पेन देता है। हम कहते हैं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले तुमने मुझे ऐसा कहा था। अभी कितने साल पहले, 20 साल पहले, तो वो सारी चीजें अभी भी मुझे याद है। एंड हु इज इन पेन, मैं पेन में। सामने वाला कहेगा अच्छा मैंने ऐसे कहा था, मुझे याद भी नहीं, आई एम सॉरी। लेकिन हम वो बातों को कितना होल्ड करके हम कितने अंदर दुखी एंड परेशान होते रहते हैं। तो हो सकता है कि कई लोग हमें जैसे कुछ क्रिटिसिज्म करे, ये सब करे, बट हमें अपनी स्थिति जो है ना जैसे बनाना है हाथी की तरह। हाथी जैसे जाता है तो बहुत सारे डॉग्स बाग करते रहते हैं, लेकिन हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी स्थिति में मन की स्थिति में बहुत ठीक है। एंड नॉट बीइंग लाइक छुई मुई प्लांट, थोड़ा सा किसी ने कह दिया और हम एनीबडी कैन जस्ट यू नो अपसेट मी, ऐसा ऐसा नेचर हमारा खुद का नहीं हो। एंड ऑलवेज सी that what I can control and what I cannot control. There are things which are in my control. Always understand that कोई चीजें आपके कंट्रोल में है एंड कोई चीजें आपके कंट्रोल में नहीं। तो जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप इस बातों को समझो। एंड उन बातों पर ये डोंट ट्राई टू गो बिहाइंड दोस थिंग्स व्हिच यू कांट कंट्रोल। व्हाट यू कैन डू डेफिनेटली आप करो। एंड एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन यू स्टार्ट योर डे, एक तो थैंक यू के साथ स्टार्ट करना। एंड व्हेन यू एंड योर डे जस्ट फॉरगिविंग people. There are things that have not gone very well throughout the day and have hurt. But वो जो resentment है वो सब लेकर नहीं रहना है, वो hurt लेकर हमें नेक्स्ट डे तक नहीं चलना है। एंड ये अपने लिए एक एवरीडे का प्रोग्रामिंग बनाओ, जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं अभी जैसा चाहिए हम अपने आप को। तो एवरीडे अपने लिए एक चीज बनाओ और किसी के लिए नहीं। माफ क्यों करें, हम कहें क्यों माफ करे, बट माफ इसलिए वो माफी के लायक नहीं होगा। लेकिन हमें तो शांति चाहिए ना, हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें शांति चाहिए। प्लीज तुम जाओ मेरे मन से मेरे थॉट से तुम जाओ, इसीलिए मैं तुमको माफ कर रहा हूँ। Not because that you are worthy of being forgiven, but I want peace of mind. I want to be relaxed and I want my mind to be free. And that is why I need to let go things in life. And for all that, we require daily in our life spirituality and meditation. जब हम थोड़ा spirituality, because ये सब चीजें हम लाएंगे कैसे, हमको इनर पावर्स भी तो चाहिए। चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट हो, एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम में रहना हो। तो जब हम ये चीजें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए भी क्या चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी चाहिए। जो व्यक्ति डेली थोड़ा भी मेडिटेशन करता है, थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी करता है, उसके अंदर में जीवन में एक साइलेंस आने लगती है। वो उसके जीवन में एक श्रेष्ठ चिंतन की धारा, एक it is like a stock of good thoughts. Like suppose we collect wealth, हमारे पास हम मनी रखते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी काम हो, जरूरत हो हमें, वो बैंक में वो हमारे पास वो वेल्थ है, मनी है, हम यूज कर सकते हैं। तो जब हम कोई डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं और हम तो हमारे मन में भी अच्छे विचारों का स्टॉक तो होना चाहिए। तो वो स्टॉक कैसे आएगा, जब एवरी डे आप थोड़ा भी टाइम निकाल कर प्रैक्टिस करते हैं। देखो जो आपको ड्यूटीज है, आपकी जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब तो चलने ही वाला है। एंड टिल
till we are in this world and we have so many duties, ये सब चलने वाला है. बट सेल्फ डेवलपमेंट हमारी आत्मा की उन्नति के लिए, हमारी सोल के डेवलपमेंट के लिए, वी हैव टू गिव दैट टाइम, इन्वेस्ट दैट टाइम, बिकॉज यही हैबिट्स एंड थॉट्स लेकर, यही संस्कार लेकर तो हम जाएंगे. we live with the world also with those kind of nature. तो वो नेचर में, उसमें हम बेस्ट बने, हम अपने आप को बहुत एक अच्छा एक अच्छा सोल बनाए, एक सोल डेवलपमेंट हम करें. एंड व्हेन यू डू मेडिटेशन, आपके अंदर वो एनर्जी आती है, एक पावर आती है. समटाइम्स थिंग्स आर गुड, you are supposed to do like this, but you don't have inner power. So when you are doing meditation, you get inner power to actually bring those things in your life. जो आप अच्छी बातें सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, उन चीजों को अपने जीवन में लाने की पावर आती है. तो स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन को अपनी लाइफ में स्थान देना, मेकिंग इट अ बेस इन आवर लाइफ, तो ये आप करेंगे तो आप खुद आपके लाइफ में देखेंगे कि बहुत सारी बेनिफिट्स आपको लाइफ में मिलेंगी. So now we will just do 4-5 minutes of meditation and positive affirmations for building our own, we can say self esteem का हो, या हमारी अपने ही नेचर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्योर बनाने के लिए. So I request all of you that we will just sit in silence with our own selves. And as I give you those thoughts, you can visualize those thoughts, you can repeat those thoughts, or you can just go with the flow of those thoughts in your mind. Om Shanti. For some time, I withdraw myself from the world outside, sitting with my own self in a seat of silence, understanding that when I came into this world, I, as a soul, was sent with the divine gifts of peace, love, happiness, bliss. I was sent in this world to experience the positive qualities and be an embodiment of these qualities. So I emerge my original nature of peace and love, inner strength, and divine wisdom. These qualities are a part of me. They are a part of my personality, which I must have ignored. But now, I emerge these qualities within myself. Understanding that this world is a drama with different personalities.
But as I interact with any human being, with every soul, I am here in this world to share this peace, love, and happiness to others. I in myself am pure and complete, satisfied. Whatever I need, the universe, the Supreme, blesses me automatically. So I have enough of peace and love within me to live happily. I don't waste my energies in negative thinking. I don't waste my energy in overthinking or taking resentments or live in hurt. My inner energy is preserved as I am able to every moment release any negativity that comes to me, negative through negative incidences. And as I get that understanding, that wisdom, I am able to pause, reflect, not overreact, and just learn to love myself, take care of myself, elevate myself, and nurture myself. And as I do this, the world around me starts becoming peaceful, loveful, and beautiful. This is my constant commitment to myself that I have to do the process of self-awareness and self-development to be very positive and optimistic in life and make my own life peaceful, loveful, and beautiful. And I become a person with a balanced personality. Every day, I can feel the power of Supreme, the divine energy of Supreme, the blessings of Supreme being showered on me. And with an open mind, all my energy is towards receiving that divine and positive energy, which is making my life divine. And that divine energy of the Supreme works through me in whatever small actions I do, the way I go in this world, lead my life in this world. And I always feel the aura of Supreme all around me, protected and safe.
and peaceful and happy. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Didi, thank you first of all. Shanti. Thank you first of all for Thank joining you. Dhan today and Thank taking such a beautiful session and such a good meditation. Thank you to everybody else for joining. We will meet the next week. Thank you. Have a nice day. Om Shanti. Thank you. Thank you to everyone. Om Shanti.